This is second part of properties of definite integrals. In previous video, we have covered one very important property 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x. With help of this important property, we were able to solve many questions of our exercise 7.11 based on these properties. So, this is very important property, but more important than this is another property is a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx. Now, let us see what is difference between these two. This was property number 3 and now we are doing property number 4. If we compare both properties are same. In fact, this is general case. ये एक जनरल केस है. अगर इसी प्रॉपर्टी में a की जगह पर 0 पुट कर दें, b की जगह पर a पुट कर दें, सपोज मैं यहाँ 0 लिखता हूँ या a लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस a माइनस x. तो ये वाली प्रॉपर्टी बन जाती है. यानी कि मेन प्रॉपर्टी तो ये है. प्रॉपर्टी नंबर 4 इज मेन प्रॉपर्टी और इसी का एक पर्टिकुलर केस, एक स्पेशल केस है प्रॉपर्टी नंबर 3. जब ये मेन प्रॉपर्टी है तो हमने पहले ये क्यों नहीं किया? बिकॉज इसके बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, कम है. इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने एक्सरसाइज 7.11 में किए थे. अब इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज़ देखते हैं. हुआ क्या है ये भी समझ लेते हैं एक बार फिर से. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, दिस विल बी रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स. जो भी फंक्शन है यहाँ हमने किया था, x was replaced by a minus x and now if we have a to b, we can replace it by a plus b minus x. So, both properties are same properties, but what is the difference? This is special case where a is replaced by 0, b is replaced by a. Now, come to the property. Let us have an example. In your book, there is one example number 35 on page number 345. Question is evaluate pi by 6, 2 pi by 3, 1 upon 1 plus root of 10x. This is question. So, let us take this as I. अब इस टाइप का हमने क्वेश्चन तो किया था, बट वहाँ 0 to pi by 2 था. और उस टाइप में हमने क्या था? We converted this tan into sin by cos. If I convert this into root sin by root cos and then take LCM, it will be root of cos x divided by root of cos x plus sin x. cos पहले आना चाहिए था बट मैंने आगे लिख दिया है, cos plus sin बात एक ही है. Now this is converted. Now if we see this format, same format पर हमने क्वेश्चंस किए हैं using this property, बट वहाँ लोअर लिमिट 0 हुआ करता था. उसका बेनिफिट क्या आता था? cos कन्वर्टेड टू sin, sin कन्वर्टेड टू cos, और फिर हम I1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया करते थे. उससे वो बना जाता था और सिंप्लीफाई हो जाता था. अब अगर हम यहाँ देखें इसको तो क्या है? दिस इज I. We are changing lower limits and upper limits. Minus x cos lower limit plus upper limit minus x. तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ ये फॉर्म आने वाली है. साइन में आ गया है पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स. ये मैंने साइन पहले लिखा है, कॉस बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर. नाउ दिस इज कॉस
pi by 6 plus pi by 3 minus x. Let us see that ये pi by 6 plus pi by 3 होता क्या है. pi by 6 है 30 डिग्री, pi by 3 है 60 डिग्री. 30 plus 60 is 90. pi by 6 पर pi by 3 is pi by 2. और ये पूरा बन गया pi by 2, तो pi by 2 minus x. और cos pi by 2 minus x क्या होता है? cos pi by 2 minus x होगा sin x. So now this is converted to root of sin x divided by square root of cos x plus square root of sin x. Sin बन गया cos, cos बन गया sin. Now this is equation number 2. Same way जो आप 0 to pi by 2 में कर रहे थे, adding equation 1 and equation 2. If we add equation 1 and equation 2, it becomes 2i pi by 6 to pi by 3 root cos x plus root of sin x divided by root of cos x plus square root of sin x. Now both get cancelled and we have only 1, and integration of 1 is x. Now applying limits, we will apply upper limit minus lower limit. x में put कर दिया. Upper limit minus lower limit, pi by 3 minus pi by 6, 60 डिग्री minus 30 डिग्री is only 30 डिग्री. LCM ले लेंगे, उससे भी आ जाएगा. But this is value of 2i. हमें तो i find करना है. So i is pi by 12. और i था क्या? i हमारा क्वेश्चन भी था. So we have value of this as answer. Pi by 6, 12 is answer. i की वैल्यू pi by 12, बट i था क्या? i हमारा क्वेश्चन था. i was this one और इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी. सो वी हैव आंसर ऑफ दिस एज pi by 12. pi by 12 आंसर आ गया है. जब 0 to pi by 2 केस थे तो वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे pi by 4, बट यहाँ आंसर आया है pi by 12. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. इट इज 3 to 4 root of x upon root of x plus root 7 minus x. Here again we can apply same property. If this is equation number 1 and I convert this into 3 to 4 root, x is replaced by lower limit plus upper limit minus x. Same thing in denominator, x is replaced by lower limit plus upper limit minus x plus root 7 minus lower limit plus upper limit minus x dx. Now this form is converted to 3 to 4 root of 7 minus x divided by root of 7 minus x plus root of x dx. This is equation number 2. Now adding equation 1 and 2, just like we did in previous example, adding 1 and 2, we are getting 3 to 4. Denominator is same, root of x plus root of 7 minus x, and numerator also comes out to be same on adding them. दोनों का base same है, denominator same है, so we can add them and we are getting this numerator denominator gets cancelled, 1 is left out. Integration of 1 is x. So now 2i is equals to x, lower limit is 3, upper limit is 4, this is 4 minus 3, that is 1. So finally I will be 1 by 2. This is answer. So this way we can solve lots of question. I am taking one more example. इस टाइप के एग्जाम्पल्स NCERT में नहीं है, सिर्फ एक सॉल्व एग्जाम्पल है, बट देर आर
many questions which we can use here. If it is 3 to 6 x root of 9 minus x. In this case, if I apply the property 3 to 6 x is replaced by lower limit plus upper limit minus x root of 9 minus lower limit plus upper limit minus x dx. This form was not integrable, but on applying the limit we have an convertible form 9 minus x root of x and dx. This is on simplification x only. Now here we are not going to add equation 1 and equation 2. यहाँ कोई डिनोमिनेटर सेम नहीं है जो कैंसिल होने ऐड होने के बाद कैंसिल कर देगा टर्म्स को. दिस फॉर्म वाज नॉट इजीली इंटीग्रेबल. इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल था, बट दिस फॉर्म इज इजीली इंटीग्रेबल, सो वी यूज द प्रॉपर्टी टू मेक आवर क्वेश्चन ईजियर. Now we can expand this bracket. It is 9 root x minus x into root x. Powers को add कर देते हैं. This is 3 by 2 dx. Now integrating this question, because this is now integrable form. यहाँ कोई add नहीं किया है. We are just using this property to simplify the question. 9 root x का integration x raised to the power 3 by 2 into 2 by 3 minus x raised to the power 5 by 2 into 2 by 5 whole raised to the power limits, applied limits 3 to 6. Now we will apply limits in these types. This is cancelled, it is 6 only. 6 x raised to the power 3 by 2, we will apply limit 3 to 6 minus 2 by 5, x is raised to the power 5 by 2, we will again apply limit 3 to 6. So as a whole पूरे में लिमिट अप्लाई करने के बजाय हम इंडिविजुअल टर्म्स में अलग अलग लिमिट्स को अप्लाई कर रहे हैं. एंड नाउ यू कैन फाइंड द आंसर. आंसर इज 6 into 6 raised to the power 3 by 2 minus 3 raised to the power 3 by 2 minus 2 by 5 and 6 raised to the power 5 by 2 minus 3 raised to the power 5 by 2. This is form and this way we have solved the question. आगे थोड़ा और solve करना है. थोड़ा मैंने अपने आप लिया है, so this is so something weird. Otherwise आप इसको कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी नंबर 5. a to b f(x) dx is equals to integral of a to c f(x) dx plus c to b f(x) dx. अगर हमें इंटीग्रेट करना है a से लेकर b तक, तो हम उसको दो पार्ट में कर सकते हैं. a से c तक किया और फिर c से b तक किया. तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ. सपोज x है और dx है और यहाँ लिमिट अगर होती है 1 से लेकर 5 तक, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5. तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई कैन स्प्लिट दिस इनटू इंटीग्रल ऑफ x फ्रॉम 1 to 3 एंड 3 to 5. अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ दोनों पार्ट का अंडर दीज लिमिट्स और आंसर फाइंड करूँगा, तो कंबाइंड आंसर आफ्टर एडिशन विल बी सेम एज आंसर ऑफ दिस. सिमिलरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके दो ही पार्ट कर सकते हैं. वी कैन स्प्लिट इट इनटू मोर देन 2 पार्ट्स ऑल्सो. हम इसको 1 to 2x dx कर सकते हैं, प्लस 2 to 3 dx x dx कर सकते हैं, प्लस 3 to 4 x dx कर सकते हैं, एंड देन 4 to 5. हम इसके 3, 4 पार्ट 5 जितने भी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू लिमिट्स, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन था 1 to 5, हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे. तो हम एक सिंपल क्वेश्चन को जो सिंगल एक ही इंटीग्रेशन से हो रहा है, हम उसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन क्यों बनाएं, या 3 या 4 इंटीग्रेशन अलग अलग क्यों बनाएं. तो इसको हम ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे.
ये जो प्रॉपर्टी है ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में ही यूज़ होगी, जहाँ पर फंक्शन हमें अलग अलग करना ही होगा, जहाँ हमारी मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है, जहाँ हमें करना ही है, इफ़ यू हैव टू स्प्लिट दिस क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। और ऐसा कब होगा? जब फंक्शन ही हमें डिफाइंड इस तरह से होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1 to 5 ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब एफ एक्स क्या है वही क्वेश्चन में अलग से डिफाइंड है, वेयर दिस एफ एक्स इज -1 और x if x is less than 3 and if x is greater than 3। इक्वल टू हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखें। 3 से कम के लिए फंक्शन है -1 और 3 से ज़्यादा के लिए है x। अब ये फंक्शन क्योंकि एक सिंगल एक तरह का नहीं है, ये अपनी नेचर चेंज कर रहा है। 3 से कम पर कुछ और है और 3 से ज़्यादा पर कुछ और है। तो इसके इंटीग्रेशन को हम 1 से लेकर 5 तक एक साथ नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन होता सिर्फ और सिर्फ कि इंटीग्रेशन इस पार्ट का फाइंड कीजिए 3 या 3 से ज़्यादा किसी लिमिट के लिए, सपोज ये होता कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो 3 से 7 के बीच में मुझे पता है 3 से ज़्यादा सब कुछ भी ले लीजिए, फंक्शन तो x है। मैं यहाँ पर x पुट करके डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन होता कि इंटीग्रेट कीजिए लाइक 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 0 और 2 के बीच में फंक्शन है क्या। 3 से कम कुछ भी जा रहा है पॉइंट, रियल नंबर, फंक्शन इज ऑलवेज -1, तो मैं इसको -1 ले लूँगा और -1 का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 2 तक। ये वन साइडेड डिफाइंड है, यानी कि जो ये लिमिट है इसकी रेंज को कहीं अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। 3 से 7 था, 3 से ज़्यादा वाला फंक्शन लिया। 3 से कम के लिमिट्स है तो 3 से कम वाला फंक्शन लिया। लेकिन जहाँ लिमिट वाला पॉइंट, जहाँ ये इसका क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं इसे, जहाँ ये क्रिटिकल पॉइंट 3 इन दोनों के बीच में आ गया, तो अब हम डायरेक्ट सिर्फ एक फंक्शन या तो -1 ले लें या यहाँ पर एक्सपुट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसको अब हमें स्प्लिट करना होगा, और स्प्लिट करने के लिए रियल नंबर लाइन पर अगर देखें क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होगा, ये 3 है। 3 या 3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन x है और 3 से कम के लिए फंक्शन -1 है। मुझे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? मुझे कहा गया है इंटीग्रेशन 1 से लेकर 5 तक। तो 1 से लेकर 3 तक जो फंक्शन है वो है -1 और 3 से 5 तक देखें तो फंक्शन है x। तो हम इस क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही होगी, वी नीड टू स्प्लिट दिस फंक्शन। और वो पॉइंट जहां हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं दैट इज आर क्रिटिकल पॉइंट, और वो है 3। तो अब हम लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी आप मेंशन कर देंगे, एफ एक्स डी एक्स इज 1 to 3 एफ एक्स, सीधा एफ एक्स की वैल्यू लिख दी है, प्लस 3 to 5 एफ एक्स, जो 3 से ज़्यादा के लिए 5 के बीच में वो x है, ये पुट कर दिया गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को स्प्लिट करना ज़रूरी था। डायरेक्ट एक कोई सिंगल फंक्शन लेकर हम कर नहीं सकते। तो ये जो स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी है हम ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस में तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ये प्लस ये आंसर सेम आएगा, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर लाएंगे तो ये आएगा। बट हम एक ही क्वेश्चन के 4 अलग अलग क्वेश्चन क्यों बनाएं जब ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखें, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट इज 3 और 3 से कम के लिए फंक्शन कुछ और है, ज़्यादा के लिए कुछ और है। तो अब हमें करना ही होगा, फंक्शन के 2 पार्ट करने होंगे, वी विल हैव टू स्प्लिट। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, -1 का इंटीग्रेशन -x, -n को बाहर ले लिया, प्लस x² 2 x का इंटीग्रेशन 3 to 5, बस लिमिट्स अप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा -3 - 1 प्लस 25/2 -9/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2 यानी कि -2
और 25 minus 9 that is 16, 16 by 2 that is 8. So finally answer is 6. ये एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर क्रिटिकली डिफाइंड हो, लाइक एक्स स्क्वायर 2x, x is less than 0, greater than equal to 0 but less than 1, greater than 1 but और इन्फाइनाइट तक है। सपोज ये 1 यहाँ है और ये इन्फाइनाइट या कोई भी पॉइंट हो सकता है, इन्फिनिटी ले लेते हैं। यूजुअली इन्फिनिटी को मेंशन नहीं किया जाता। अब क्वेश्चन ये है, इफ फंक्शन इज दिस देन फाइंड और इवेल्युएट -2 to 5 fx dx। -2 और 5 के बीच में फंक्शन है और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ इफ वी सी नंबर लाइन -infinity to +infinity, here in this function we are given two critical point. One critical point is 0, another critical point is 1. 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है? For more than 1 it is 2x. Between 0 and 1, यहाँ आप चाहें तो 1 को राउंड में ले लीजिए इस फॉर्म में, और उसके बाद 0 और 1 के लिए एक्स स्क्वायर है और फिर 0 से कम के लिए x है। सो इट इज़ ऑब्वियस वी हैव टू क्रिटिकल पॉइंट और हमें इंटीग्रेट क्योंकि करना है कहाँ से? -2 से। -2 कहीं यहाँ होगा, -2 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करना है, 5 कहीं यहाँ होगा। जब -2 से स्टार्ट करते हैं तो -2 से 0 तक एक फंक्शन अलग है। आई कैन से splitting this function using property मेंशन करनी है। you have to write that property। -2 to 0, -2 और 0 के बीच में फंक्शन है x, देन 0 to 1 फंक्शन है x स्क्वायर, एंड देन 1 to 5 फंक्शन है 2x। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट। इससे आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेन पर्पस था हाउ टू स्प्लिट द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड यूनिफॉर्मली। एक सिंगल फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अलग अलग फॉर्म में डिफाइंड है, देन वी विल हैव टू स्प्लिट। एक बात और, अगर ये क्वेश्चन यहाँ अभी -2 से 5 तक स्टार्ट हुआ है, अगर इसकी लिमिट होती 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से आगे 5 तक सिर्फ एक ही फंक्शन है तो मैं डायरेक्ट 2x लिख सकता था। मतलब अगर यहाँ होता 1 और यहाँ 5 है तो 1 से 5 तो सिर्फ एक ही टाइप का फंक्शन चल रहा है 2x, तो इस fx को सीधा 2x लिखकर हम इंटीग्रेट कर देते, कोई चेंज नहीं होता। सिमिलरली अगर 0 से 1 का लिमिट होती है तो मैं सीधा एक्स स्क्वायर लेता, कोई स्प्लिट नहीं होगा। इसी तरह 0 से कम की ही सारी लिमिट्स हैं तो सिर्फ x लेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हाउ फंक्शन इज क्रिटिकली डिफाइंड एंड हाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। अब ये तो हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस जहां हमें क्रिटिकल पॉइंट अपने आप गिवन है कि हमें कहां पर स्प्लिट करना है, हमें हिंट मिल जाता है। इस क्वेश्चन में भी हमें हिंट मिल गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हमें क्रिटिकल पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमें खुद फाइंड करने होंगे। इसके अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। In this example, we are given -5 to 5 and modulus of x plus 2 dx। mod x का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं कर पाते mod x, और mod x का इंटीग्रेशन भी हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। मॉडुलस ऑफ फंक्शन को हमें स्प्लिट करना होगा। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वहाँ फंक्शन ऑलरेडी क्रिटिकली डिफाइंड था अलग अलग रेंज में। इस क्वेश्चन को हमें पहले रीडिफाइन करना होगा। रीडिफाइन करने के लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी मॉड के अंदर है इसके फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, तो एक ही फैक्टर है, और फिर इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। x प्लस 2 को इक्वल टू 0 किया तो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है -2। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट कीजिए। दिस इज -इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब -2 से इन्फिनिटी के बीच में इस फंक्शन का विदाउट मॉड साइन क्या होगा वो चेक करते हैं। -2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए। -2 और इन्फिनिटी के बीच में आते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, -1 है, 0 है, 1 है,
2 है, 3 है एंड सो ऑन। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। एज्यूम कीजिए मैंने लिया, चलिए 1 ले लेता हूँ मैं। इस 1 को अगर मैं यहाँ बिना मॉड के पुट करता हूँ x+2 में, तो 1+2 क्या होगा? 3। आंसर आ रहा है पॉजिटिव। -1 लेके देख लेते हैं, -1+2 विदाउट मॉड चेक कर रहे हैं, तो ये भी आया पॉजिटिव। यानी कि ये जो ब्रैकेट है x+2, इसका मॉड हट जाएगा और ये पॉजिटिव लिखा जाएगा। ऐसे ही अब आते हैं -2 से कम के लिए। -2 से लेस पर आए तो पॉइंट्स क्या हैं? -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, लाइक मैंने -4 लिया। -4 को यहाँ पुट किया गया विदाउट मॉड। मॉड को नहीं करना है हमें कंसिडर, मॉड तो हम हटा रहे हैं। -4 + 2 इज -2, यानी कि आंसर आ रहा है नेगेटिव x+2। तो अब हम देख पा रहे हैं -2 से कम के लिए ये मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव है, और 2 से ज़्यादा के लिए, ग्रेटर के लिए, ये मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव है। हम इसको रीडिफाइन करके भी लिख सकते थे, x+2 मॉडुलस कैन बी रीडिफाइंड एज नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव if x is less than -2, पॉजिटिव if x is greater than or equal to -2। जी, इक्वल टू साइन पॉजिटिव वाली साइड ही कंसीडर करते हैं, वैसे तो जीरो न्यूट्रल है, बट हम पॉजिटिव वाली साइड पर ही इक्वल टू को लेकर चलते हैं, ये वाली साइड। अब ये क्रिटिकली डिफाइंड हो चुका है और क्रिटिकल पॉइंट आया है -2। रीडिफाइन हमने कर दिया है, तो हमारा ब्रेक पॉइंट होगा -2। इंटीग्रेट करना है -5 से लेकर 5 तक। तो अब हमें पता है कि हमें इसको कहाँ स्प्लिट करना है? जी, क्रिटिकल पॉइंट पर ही स्प्लिट करना है। mod of x+2 dx is -5 to -2, लेकिन यहाँ तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा जाएगा, प्लस -2 to 5, और अब यह है पॉजिटिव। मॉडुलस का साइन हटाने के लिए हमें इस तरह से स्प्लिट करना होगा, फंक्शन को रीडिफाइन करना होगा। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन बन गया है। माइनस बाहर रखा, x का इंटीग्रेशन x² 2 + 2x, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों अप्लाई करनी है, प्लस सेम हेयर x² 2 + 2x -2 to 5। आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब सिर्फ लिमिट्स अप्लाई करनी है। मेन पर्पस था हमारा क्वेश्चन को स्प्लिट करना है, सीखना, और अब हम ये कर चुके हैं बड़ा इजी वे में। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर होता 0, लोअर लिमिट 0 होता, 0 और अपर लिमिट सेम 5 है, तो हम देखेंगे 0 तो यहाँ है और 0 से ज़्यादा सब पर फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव है। अगर यही क्वेश्चन होता इंटीग्रेट 0 to 5 मॉडुलस ऑफ x+2 dx, तो क्योंकि 0 से ज़्यादा पर फंक्शन सिर्फ एक ही नेचर पर है, अलग अलग नहीं चेंज हो रहा है, वी विल टेक ओनली पॉजिटिव। तो हम सिर्फ क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे, और इस क्वेश्चन को अब स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे लिमिट पॉइंट्स क्या हैं और क्रिटिकल पॉइंट उसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्प्लिट उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। सिमिलरली अगर हमारी पूरी फंक्शन की रेंज, इंटीग्रल की रेंज इससे कम पर ही आ जाती तो सिर्फ नेगेटिव लिया जाता। मान लीजिए क्वेश्चन होता -5 से -2 या -3, और क्वेश्चन में ये मॉडुलस ही दिया हुआ है। अब क्योंकि -2 से कम सबके लिए फंक्शन नेगेटिव ही है, तो मैं सीधा मॉड हटाकर नेगेटिव ले लूँगा और इसको अब इंटीग्रेट कर दूंगा। माइनस बाहर, दिस इज x² + 2 + 2x एंड -5 to -2। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो हमने अभी किया है, x+2 - 5 to 5। एक और सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह का एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 18। और एक क्वेश्चन करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार एक सिंपल सा ही फंक्शन मिले और आप उसको डायरेक्टली स्प्लिट कर पाएँ या सिंप्लीफाई कर पाएँ। एक एग्जाम्पल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, उसको ले लेते हैं। एग्जाम्पल में लिमिट्स दी हुई हैं -1 से 2 तक। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 30 है ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल। फंक्शन इज गिवन mod of x³ - x।
इसको पहले रीडिफाइन करना होगा। मॉडुलस कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, डिफरेंशिएट भी नहीं होगा, इंटीग्रेट भी नहीं होगा। और मॉडुलस ऑफ एक्स को डायरेक्ट कहें तो वो डिफरेंशिएबल है भी नहीं, हमने ऐसे क्वेश्चन अब तक किए भी नहीं हैं, वो हम डिफरेंशिएबिलिटी में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, एक्स कॉमन निकलता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। फर्दर इसके फैक्टर्स किए, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आता है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फैक्टर था, उसको इक्वल टू ज़ीरो किया, एक्स प्लस टू था तो एक्स प्लस टू को इक्वल टू ज़ीरो किया गया और हमें पॉइंट मिल गया माइनस टू। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट तीन तीन है, एक है ये टर्म, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तीनों को अलग अलग इक्वल टू ज़ीरो किया जाए तो क्रिटिकल पॉइंट्स इससे मिलता है ज़ीरो। एक्स को इक्वल टू ज़ीरो किया तो ज़ीरो आ गया। अब इस ब्रैकेट को इक्वल टू ज़ीरो किया तो वन आया। अब इस ब्रैकेट को इक्वल टू ज़ीरो किया तो माइनस वन आया। मतलब जितने भी ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है सबको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे इंडिविजुअली और ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब नंबर लाइन पर आ जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन के हिसाब से पहले माइनस वन आना चाहिए, फिर ज़ीरो आना चाहिए और फिर वन आना चाहिए। ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब हम चेक करते हैं साइन। मैं एक पॉइंट ले रहा हूं जो कि वन से ग्रेटर है। वन से ग्रेटर मैंने ले लिया टू, और टू को मैंने यहाँ पुट किया पूरे फंक्शन में। टू पॉजिटिव है, टू माइनस वन ये भी पॉजिटिव आ रहा है, टू प्लस वन ये भी पॉजिटिव आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है उसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ प्लस या माइनस देखना है। टू यहाँ पुट किया पॉजिटिव, टू यहाँ पुट किया पॉजिटिव, टू यहाँ पुट किया पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। अब 0 और 1 के बीच में 0.5 ले लेते हैं। 0.5 ये पॉजिटिव हो गया, 0.5 ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पुट किया तो नेगेटिव आ रहा है, 0.5 माइनस वन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव नेगेटिव। अब 0 और माइनस वन के बीच का लेते हैं, माइनस 0.5 लिया मैंने, माइनस 0.5 यहाँ पुट करेंगे नेगेटिव, यहाँ पुट किया नेगेटिव, यहाँ पुट किया पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे पॉजिटिव आएगा। आप चाहे तो आंसर भी पूरा फाइंड कर सकते हैं, बट वो आंसर नहीं लिखना, हमें सिर्फ प्लस और माइनस चेक करना है। ये पॉजिटिव आ रहा है। अब माइनस वन से कम आते हैं, मैंने लिया माइनस टू, माइनस टू को यहाँ पुट किया नेगेटिव, यहाँ पुट किया नेगेटिव, यहाँ पुट किया नेगेटिव, तीन नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में यानी कि नेगेटिव। ये साइन होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम देखते हैं इंटीग्रेट करना कहाँ से। जो इंटीग्रेशन करना है इस क्वेश्चन में वो हमें करना है माइनस वन से शुरू होकर और जाना है टू तक। टू कहीं यहाँ होगा, तो ये वाला साइन माइनस वन से कम मुझे स्प्लिट करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से शुरू करना है इंटीग्रेशन। तो माइनस वन से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से वन और फिर वन से जो मेरा लास्ट पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में टू तक, माइनस वन से टू तक करना है। तो माइनस वन से टू तक के अकॉर्डिंगली ही स्प्लिट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हो जाते हैं। माइनस वन से टू तक स्टार्ट करना था तो पहला आएगा माइनस वन से ज़ीरो, ऑल पॉजिटिव, मॉड हट गया पॉजिटिव आ गया। इसके बाद प्लस ज़ीरो से ही स्टार्ट किया, ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, ज़ीरो से स्टार्ट किया वन तक गए। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो ये ब्रैकेट आ गया नेगेटिव। अब आगे चलते हैं, वन से आगे इनफाइनाइट तक पॉजिटिव है, लेकिन हमें सिर्फ टू तक करना है क्योंकि टू से आगे इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। तो ये हो गया वन टू टू पॉजिटिव एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ये तीन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप इनको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स में पुट करेंगे। x4 बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स टू बी अप्लाइड माइनस वन टू ज़ीरो, माइनस ये वाला बाहर ले लिया, अगेन x4 बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ज़ीरो टू वन, फिर आगे आ जाते हैं x4 बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स वन टू टू। आगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमें लिमिट्स का ध्यान रखना है। अगर इसी क्वेश्चन में होता माइनस थ्री से या माइनस टू से होता तो ये वाला पॉइंट भी लेना होता। सपोज क्वेश्चन होता माइनस टू से टू तक इंटीग्रेट कीजिए, तो पहला पार्ट होता माइनस टू से माइनस वन नेगेटिव,
फिर 1 से 0 पॉजिटिव, फिर 0 से 1 नेगेटिव, फिर 1 से 2 पॉजिटिव। और अगर ये क्वेश्चन होता इंटीग्रेट सिर्फ इतना होता -2 से लेकर 0 तक मॉड ऑफ x³ माइनस एक्स, अगर -2 से 0 तक ही करना है तो सिर्फ यहीं तक के पार्ट आएंगे, इसके 2 पार्ट हो जाते। फिर अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो एक पार्ट होता -2 से -1 क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ है नेगेटिव, उसके बाद -1 से 0 और यहाँ है पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम स्प्लिट करेंगे। हमें लिमिट्स की ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हैं और एक क्रिटिकली किस तरह से डिफाइन है, इसका ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन हुआ जहाँ एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट थे। ये क्वेश्चन इससे पहले हमने किया जहाँ पर सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट था, x+2 वाले में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था -2, हमने इसको डिफाइन किया। ये वाला एक्सप्लेनेशन आपके लिए ऑप्शनल है, आप पूरा शो करके दिखाना ज़रूरी नहीं है, बट नंबर लाइन दिखा देंगे। आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं, नंबर लाइन आपको क्योंकि खुद भी शो करनी है तो रफ में क्यों करें, फेयर में करके दिखाइए। ये वाला स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सीधा इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी देखिएगा इस एग्जाम्पल को इन्होंने बिना किसी क्रिटिकल पॉइंट की वर्किंग के डायरेक्ट कर दिया है, बट वी शुड शो वर्किंग टू चेक वेदर वी आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। अब यहाँ देखिए ये 3 अलग अलग मॉडुलस हैं, एक ही मॉड में कंबाइंड नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले 3 अलग अलग क्वेश्चन ही मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन अलग किया गया, दूसरा क्वेश्चन अलग किया गया और तीसरा क्वेश्चन अलग किया गया। अभी स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी नहीं लगाई, अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन क्योंकि प्लस में था तो हम अलग अलग इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, हमने एक क्वेश्चन के ही 3 क्वेश्चन बना दिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था नहीं, प्लस में है या माइनस में, तो हम अलग अलग क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट लेना है, यहाँ सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट लेना है, यहाँ सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट लेना है। इसको देखें तो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1 = 0 किया, 1 आ गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, साइन चेक कीजिएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 2, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, साइन अपने आप चेक कीजिएगा। और इसको चेक कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट 3 पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से ये हमारे फंक्शंस रीडिफाइन हो गए हैं। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ स्प्लिट करना ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट को अगर देखें 1 to 4, लेकिन 1 से ज़्यादा तो सब पॉजिटिव है, तो ये सीधा सीधा पॉजिटिव हो जाएगा और मॉड हट जाएगा। ये पहले पार्ट को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा पॉइंट है 1 से लेकर 4 इंटीग्रेट करना है, बट क्रिटिकल पॉइंट 2 है। अब 1 तो कहीं यहाँ होगा और 4 कहीं यहाँ है, 1 इससे कम है, तो हमें अब इस क्वेश्चन को स्प्लिट करना है। पहले 1 से 2 तक करेंगे, 1 से 2 तक नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लिया x-2 का। फिर इसके बाद 2 से आगे चलते हैं, कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, तो 4, और अब यहाँ पर यह है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ले लिया। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं, x-3, क्रिटिकल पॉइंट 3 है, लेकिन इंटीग्रेट करना है कहीं 1 से लेकर 4 तक, 1 से 3 तक नेगेटिव और 3 से 4 पॉजिटिव। तो इसके भी 2 पार्ट होने वाले हैं। पहला पार्ट 1 से लेकर 3 नेगेटिव x-3 dx, और उसके बाद फिर पॉजिटिव 3 से लेकर 4 तक पॉजिटिव होगा x-3 dx। इससे आगे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मेन पर्पस था आपको पॉइंट स्प्लिट करना सिखाना, और आप वो अब समझ चुके होंगे। अब ये तो थे 2-2 या 3-3 पॉइंट जो अलग अलग हैं। सपोज़ एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, -5 से 5 है और इक्वेशन यहाँ कोई क्वाड्रेटिक दी हुई है लाइक दिस, x² -5x + 6। अभी इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया भी है जो सॉल्व एग्जाम्पल था। इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं -5 to 5। इस मॉडुलस को ही देखें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक x-2 है और एक x-3 है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, 2 होंगे। इससे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 2 और इससे आ रहा है 3। अब ये क्योंकि 2 ब्रैकेट है लेकिन मल्टीप्लाई में, यहाँ तो हम इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग नहीं कर सकते, प्लस या माइनस में था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने इसको अलग अलग क्वेश्चन बना दिया, तीनों को अलग अलग पार्ट में ले लिया। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में होते या एक ही मॉड में है तो फिर हमें एक साथ लेना होगा।
एक ही मॉड में, जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब ये जो केस आया 2 to 3, अब हम पॉइंट्स लेते हैं। 3 से ग्रेटर में कोई पॉइंट ले रहा हूँ 4 को यहाँ पुट किया, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पुट किया पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच का पॉइंट है लाइक 2.5, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। 2 से कम कोई पॉइंट ले लेते हैं लाइक 1 यहाँ पुट किया नेगेटिव, 1 यहाँ पुट किया नेगेटिव, बट नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। हर बार मैं बता रहा हूँ हमें मॉड का ध्यान नहीं रखना है, मॉड तो हटाना ही है। जो हम साइन पुट करके देख रहे हैं वो विदाउट मॉड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ मॉड नहीं है ये मान के चलिए, फिर हम प्लस माइनस लगा रहे हैं। तो अब इसके 3 पार्ट हो गए हैं। हमें करना है -5 से 5। -5 2 से कम पर है, ऑब्वियसली कहीं यहाँ होगा, और 5 कहीं यहाँ जाकर आ रहा है। तो -5 से 2 पॉजिटिव, 2 से 3 नेगेटिव, और 3 से 5 पॉजिटिव। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट होने वाले हैं। 3 पार्ट्स में पहला पार्ट होगा -5 से 5, अभी मैंने फंक्शन ही लिखा है fx dx, या ये वाला मॉड इज इक्वल्स टू -5 to 2 नेगेटिव, मॉड हट गया, dx प्लस, सॉरी पॉजिटिव है ये, 2 to 3 यहाँ नेगेटिव है, x² -5x + 6 dx, और 3 से ज़्यादा के लिए आते हैं 5 तक, तो ये पॉजिटिव है। आगे अब आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन और अप्लाइंग लिमिट। तो ये मेथड हुआ स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी नंबर 5 का बेस्ड क्वेश्चंस। इस तरह के जो भी मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादातर मॉडुलस वाली फॉर्म में ही है, इनको सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।